Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 10 of the course of Electronic Devices and Circuits. In today's lecture, we are going to actually finish with the CMOS logic inverters, and we will be studying the voltage transfer characteristic curve in more detail. Let's see. Okay, if you can recall, I mentioned in the last class that voltage transfer characteristic curve represents the output voltage versus the input voltage graph of any circuit. So here we have the output voltage versus input voltage graph for a CMOS logic inverter. Please note there are almost 5 to 6 regions in this circuit. पहला region ये है, इस सर्किट के अंदर नहीं है. In this graph there are 5 regions. Region number 1 is this, region number 2 is this, region 3, region 4, region 5 and region 6. There are 6 regions. Okay, now if you can try to observe, there are multiple values written on the x-axis, multiple values written on the y-axis. Similarly, modes of transistors are also written. Let us see this one by one. Also NML is written here, NMH is written here, VTH equal to VDD by 2 is also written here. We will see all these details one by one in steps. First of all, you see that whenever we talk about logic inverters, it means we talk about logic levels like logic 0 and logic 1. And I have already told you that logic 0 corresponds to 0 volt and logic 1 corresponds to the highest voltage of the circuit, which is usually VDD. In between, we did not discuss the values that occur from 0 to VDD. Zahir hai, when we are actually switching the voltage from 0 to VDD, then it will be going through different voltage levels when it tries to reach VDD from 0. जब वोल्टेज को आप 0 से VDD पहुंचाएंगे तो बीच में ज़ाहिर है कुछ वोल्टेजेस से गुजर के VDD तक पहुंचेगा, डायरेक्ट VDD नहीं चला जाएगा. ऑल दोज वोल्टेजेस आर एक्चुअली रिटन ओवर हियर. फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट है इनपुट पे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जितना वोल्टेज. प्लीज नोट दैट फॉर ऑल द एनालिसिस ऑफ द CMOS लॉजिक इन्वर्टर वी हैव अज्यूम्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज टू बी 1 वोल्ट. तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट जितना वोल्टेज, VIL एक और वोल्टेज का नाम है, उतना वोल्टेज. फिर वोल्टेज कितना, तकरीबन VDD का बिल्कुल हाफ, जिसको हमने कहा है VDD by 2. फिर एक है VIH वोल्टेज जो VDD by 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा. फिर एक है VDD minus VT और फिर फाइनली आ गया VDD. इसी तरह से आउटपुट वाले पर there are only 2 levels written, one is directly 0 and the other is VDD. ठीक है. अच्छा, please note that VDD by 2 is that input voltage that gives an exactly similar voltage at the output. यानी कि जिस वक्त इनपुट पर VDD by 2 वोल्टेज देंगे, यानी हाफ ऑफ द VDD देंगे, उस वक्त हमारे सर्किट के आउटपुट पर भी हाफ ऑफ द VDD अपीयर हो रहा होगा. एक चीज़. अच्छा, अभी हमें VIL की वैल्यू नहीं पता, VIH की वैल्यू नहीं पता. एक बात मज़ीद जहन में रखनी है कि इस पूरे CMOS इन्वर्टर की जितनी भी एनालिसिस हमने पढ़ी है उसमें 0 वोल्ट की जगह कहीं कहीं पे VOL भी लिखा हुआ होगा और VDD की जगह कहीं कहीं पे VOH भी लिखा हुआ होगा. इसका मतलब ये है VOL सबसे पहली बात रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट लो, V0 represents आउटपुट और L बता रहा है लो. इसी तरह V0 बता रहा है आउटपुट, H बता रहा है हाई, यानी आउटपुट की हाईएस्ट वैल्यू इस सर्किट में है VDD. तो कहीं कहीं पे इस सर्किट में जहां जहां मुझे VDD लिखना होगा मैं वहां VOH भी लिख सकती हूँ. इस पूरे सर्किट की एनालिसिस में जहां कहीं पे मुझे 0 लिखना होगा मैं वहां पे VOL भी लिख सकती हूँ, यानी कि VDD के लिए सिंबल आ गया VOH इस सर्किट में पूरी कहीं पे भी, और 0 के लिए मेरे पास सिंबल आ गया VOL. अच्छा, VIL क्या बता रहा है, V इनपुट लो. VIH क्या बता रहा है, V इनपुट हाई. अच्छा, मजीद यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है QN ऑफ है, QP ट्रायोड में है.
क्यू एन सैचुरेशन में है, क्यू पी ट्रायोड में है। तो हमें बता यहाँ पे ये रहे हैं इस ग्राफ में कि जब इनपुट शेयर 0 से वीटी से कम होगा, 0 से लेकर थोड़ा इंक्रीज किया होगा लेकिन वीटी से कम होगा, तो उस वक्त क्यू एन ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, क्यू पी ट्रायोड में होगा। ये सब लिखा हुआ तो है कि ये सैचुरेशन में, ये सैचुरेशन में, ये ट्रायोड में, सैचुरेशन में, बट वी नीड टू चेक एंड वेरीफाई वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, और हाउ दे रीच दीज रिजल्ट्स, ये सारे रिजल्ट्स कैसे आए। तो अब हम ये करेंगे कि वन बाय वन इस ग्राफ के एक एक सेक्शन को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या वोल्टेजेस, क्या करंट्स हैं, क्या वोल्टेज के लेवल्स हैं जिसकी वजह से ये उन्होंने ट्रायोड या सैचुरेशन या ऑफ इसके अंदर लिखा हुआ है। So we are now starting with region number 1 where I see that VI जो कि गेट वोल्टेज भी होता है CMOS इन्वर्टर का, ठीक है, वो 0 है और उस वक्त जाहिर है V0 कितना आ रहा है, VDD। अब आप ये देखें, मैं बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट वेयर द इनपुट वोल्टेज इज 0 and at that instant of time the output voltage is VDD. Now let us see at this instance of time what will be the region of the NMOS and PMOS. अच्छा, ना सिर्फ मैं ये चेक करूँगी कि NMOS या PMOS ऑन है या ऑफ है, मैं ये भी चेक करूँगी कि NMOS और PMOS किस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं if they are on. Let us start with NMOS. NMOS के लिए VGS फाइंड कर रही हूँ, VG माइनस VS। NMOS का सोर्स वोल्टेज तो 0 पे ही है, वो यहाँ पे आपको सर्किट से नज़र आ रहा है, और NMOS का जो गेट वोल्टेज है वो इस वक्त मैं अप्लाई कर रही हूँ कितना, 0 वोल्ट अप्लाई कर रही हूँ, तो 0 VGS NMOS का कितना आ गया, 0। ये 0 वोल्टेज बेसिकली NMOS के थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो कि 1 था उससे कम है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि NMOS ट्रांजिस्टर इस वक्त ऑफ है? यस, दैट्स ट्रू, NMOS इज ऑफ नाउ। लेट अस सी वेदर द PMOS इज ऑन और ऑफ इन दिस सिचुएशन। अगेन ये बात मैं बता दूं कि PMOS के लिए लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। PMOS का हम VGS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, VDS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन दिस सिनेरियो PMOS के सारे टर्म्स नेगेटिव बन रहे होंगे। PMOS को VSG की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और VSD की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें इनकी सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आ रही होंगी। कंपेयर कैसे करना है इसके लिए इक्वेशंस मैं आपको सारी बता चुकी हूँ। यू शुड लर्न दीज इक्वेशंस सो दैट यू कैन ईजिली यूज देम व्हाइल कैलकुलेशंस, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने और बताई थी वो ये कि अगर PMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज -1 है तो PMOS के VGS को -2 होना पड़ेगा, -3 होना पड़ेगा, -4 होना पड़ेगा ताकि PMOS ऑन हो, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पे ये भी सुन लें कि अगर मैं PMOS के VSG की फॉर्म में बात करती हूँ तो VSG क्या होगा PMOS का? PMOS का VSG पॉजिटिव होगा। अगर PMOS का VGS नेगेटिव होता है तो PMOS का VSG पॉजिटिव होगा। अगर किसी को नेगेटिव वाले टर्म्स में समझ में नहीं आ रहा था कि VGS -1 नहीं होना चाहिए, -2, -3, -4 होना चाहिए, तो उसका सेकेंड मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, वो ये कि PMOS का VSG पॉजिटिव होता है। अब PMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ पे PMOS के बेसिकली थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 वोल्ट। इस 1 वोल्ट को आप VSG से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि VSG पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि PMOS का VSG जब भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जैसे कि 1 वोल्ट, MOSFET ऑन हो जाएगा। फिर अगर VSG 1 से बढ़ेगा, 2 वोल्ट पे जाएगा तो MOSFET ऑन रहेगा PMOS। फिर VSG 3 वोल्ट पे जाएगा तो ऑन रहेगा। यानी अगर PMOS को भी आप NMOS की तरह पॉजिटिव टर्म्स में लेके चेक करना चाहते हैं कि आप जो है वो सिर्फ देखते जाएं, जैसे NMOS में क्या था, थ्रेशोल्ड से बड़ा वोल्टेज आया NMOS ऑन होता था, तो अगर आप PMOS के लिए भी इसी पॉजिटिव टर्म्स में बात करना चाहें कि वो कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, तो आप उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकाल लें जो कि 1 है और फिर उसको VSG से कंपेयर करते जाएं। जब जब VSG थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, PMOS ऑन हो जाएगा। तो इसी मेथड को लेके हम जो है वो कंपेयर करते हैं कि PMOS ऑन है या ऑफ। अच्छा, रीज़न एक चीज़ ये कि वी आर यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट इन डिफरेंट सर्किट इज़ दैट कि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे VSG की टर्म्स में बात करनी आती है तो मुझे VGS के टर्म्स में भी बात करनी PMOS के लिए आनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स जब डिफरेंट बुक्स लिखते हैं वो डिफरेंट कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। अब अगर आपको VSG की फॉर्म में ही अपनी सारी इक्वेशन पढ़नी आती हो, पता ही ना कि
VGS के फॉर्म में कैसे करना है, ये VGS पता हो, VSG का फॉर्म ना पता हो, तो ज़ाहिर है आप फिर कोई भी नई बुक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि राइटर क्या कह रहा है। तो हमारी एनालिसिस में अब तक हमें ये समझ में आ गया है कि हम दोनों तरह से स्टडी करते आ रहे हैं, हर चीज़ को, मोड को भी और ऑन ऑफ सिनेरियो को भी, हम दोनों तरह से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, PMOS के लिए VSG फाइंड करते हैं। PMOS का सोर्स वोल्टेज माइनस गेट वोल्टेज करना होगा। PMOS का सोर्स वोल्टेज इज ऑलवेज एट VDD, गेट वोल्टेज को हम यहाँ कह रहे हैं VI, और इस वक्त VI की तरह VI आप 0 दे रहे हैं, तो मैंने क्या किया, VDD माइनस 0 यानी VDD। QP, ये VDD PMOS के थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई दिस PMOS इज फुल्ली ऑन। ठीक है, यहाँ आपको पता चल गया PMOS ऑन है। मैं मोड फाइंड कर रही हूँ PMOS का, VDS VGS माइनस VTP। ठीक है, मैंने यहाँ पे VDS वाला कन्वेंशन रखा है। और एक बात, ये कन्वेंशन कि मैं जो मोड फाइंड कर रही हूँ मैं VSG से फाइंड कर रही हूँ, और जो ऑन ऑफ फाइंड कर रही हूँ VSG से फाइंड कर रही हूँ, मोड फाइंड कर रही हूँ VDS से फाइंड कर रही हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। हो सकता है कि आप ऑन ऑफ फाइंड करने के लिए VGS यूज़ कर रहे हो, और हो सकता है कि आप मोड वाला फाइंड करने के लिए VSD ग्रेटर देन VSG प्लस VTP वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हो। सारे मेथड्स करेक्ट हैं। दिस इज़ जस्ट वन वे ऑफ डूइंग द एनालिसिस। अगर आप मेरी प्रोवाइडेड इक्वेशंस में से या मेथड में से कोई भी मेथड फॉलो करते हुए अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, बिल्कुल वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर रीचिंग द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और बात वो ये कि इस सर्किट की एनालिसिस में हमारे पास कोई भी वोल्टेज हाईएस्ट प्लस VDD से ज़्यादा नहीं जा सकता, और कोई भी वोल्टेज नेगेटिव माइनस VDD से कम नहीं हो सकता। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि हाईएस्ट वोल्टेज हमारे सर्किट का प्लस VDD, लोएस्ट वोल्टेज माइनस VDD है, इससे ज़्यादा या कम वोल्टेज नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं। PMOS का मैंने VDS फाइंड किया। PMOS का देखिए इस वक्त आउटपुट वोल्टेज कितना है हमारा, आउटपुट वोल्टेज हमारा इस वक्त कितना है, हमारा आउटपुट वोल्टेज है इस वक्त VDD, जो कि हमारा ड्रेन का वोल्टेज है, क्योंकि हमारा आउटपुट वोल्टेज ही तो हमारा ड्रेन का वोल्टेज है। तो हमें पता चल रहा है PMOS के ड्रेन पे या आउटपुट टर्मिनल पे आ रहा है VDD, सोर्स पे पहले से VDD था, ये साइड आ गई 0। PMOS के VGS की वैल्यू पुट करें, गेट पे आप दे रहे हैं 0 माइनस द सोर्स वोल्टेज VDD माइनस एज इट इज आ गया VTP। मुझे बेसिकली इसको देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वेदर विच साइड इज ग्रेटर, क्योंकि मैं तो आपको याद है कि ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन हमेशा एंड में लगाती हूँ। पहले इस साइड को एवेल्युएट कर लेती हूँ, इस साइड को एवेल्युएट कर लेती हूँ, देखती हूँ जो साइड बड़ी आ रही है ग्रेटर देन का साइन उसकी तरफ लग जाता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं इसको इस साइड को रीड नहीं कर पा रही थी वेदर दिस साइड बी स्मॉलर और ग्रेटर, मैंने क्या किया, माइनस VDD यानी कि VDD की वैल्यू पुट करके रफली देख ली, माइनस था यहाँ से, VTP बताते खुद -1 होता है, तो ये प्लस हो गई चीज़, माइनस VTP की वैल्यू, तो -4 वोल्ट आ गया। 0 -4 से बड़ा है, 0 जब -4 से बड़ा है इसका मतलब है ये साइड ग्रेटर आ रही है PMOS के लिए VDS की। PMOS में ग्रेटर VDS जो होता है वो बेसिकली ट्रायोड को इंडिकेट कर रहा होता है, तो पता चला कि PMOS ट्रायोड में है। तो उस वक्त जब इनपुट पे आप 0 दे रहे हैं, आउटपुट पे VDD आ रहा है, NMOS ऑन हुआ और NMOS ऑफ है, और PMOS किस में है, ट्रायोड में। यही चीज़ यहाँ लिखी है, QN ट्रांजिस्टर इज ऑफ एंड QP ट्रांजिस्टर इज इन ट्रायोड रीजन, यही चीज़ लिखी हुई है। अगले रीजन पे आ जाते हैं। अगला रीजन क्या है कि हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड जितना वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड के मैग्नीट्यूड जितना वोल्टेज जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि VGS फिर से NMOS के लिए फाइंड करेंगे कि NMOS ऑन है या ऑफ है, NMOS का VGS फाइंड कर लीजिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रहे हैं तो आउटपुट पे वोल्टेज कितना मिल रहा है, VDD जितना ही मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे पास गेट वोल्टेज कितना है, थ्रेशोल्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और आउटपुट वोल्टेज कितना है, VDD के ही बराबर आ रहा है। तो VGS फाइंड कर रहे हैं, VG माइनस सोर्स वोल्टेज फॉर NMOS इज 0, गेट वोल्टेज फॉर NMOS इज कॉल्ड एज VI, उसको हमने पुट किया है VT का मैग्नीट्यूड, तकरीबन ये VT का मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ रहा है। प्लीज़ नोट कि QN ट्रांजिस्टर जो है इसके ऊपर अगर आप VGS 1 वोल्ट दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो चुका होगा, चैनल बन चुका होगा। अब आ जाए NMOS
ऑन तो है लेकिन किस मोड में ऑन है? प्रीवियसली NMOS ऑफ था जब भी मैंने इसका मोड फाइंड नहीं किया था। अब चूंकि मुझे NMOS ऑन नजर आया है, दैट इज व्हाई आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड इट्स मोड। VDS VGS माइनस VT, अगेन ये वाला जो ग्रेटर देन का साइन है ये हम सबसे आखिर में लगाते हैं कि कौन सी साइड ग्रेटर है। इस साइड को अलग कैलकुलेट कर ले, इस साइड को अलग कैलकुलेट कर ले। NMOS का सोर्स वोल्टेज 0 है, ड्रेन पे VDD आ रहा है क्योंकि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है एक्चुअली इट्स योर ड्रेन वोल्टेज VDD माइनस 0। गेट पे थ्रेशोल्ड का मैग्नीट्यूड है, सोर्स वोल्टेज 0 माइनस NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको ऐसा नज़र आएगा कि मैंने सबस्क्रिप्ट में n नहीं लिखा है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि NMOS के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ज़ाहिर है VT n हो जाएगा, NMOS का थ्रेशोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बिकॉज आई कैन नॉट सी विच साइड इज ग्रेटर, तो मैंने क्या किया, रफली वैल्यूज पुट करके देख लेने से एक अंदाजा हो जाता है कि कौन सी साइड ग्रेटर जा रही है। VDD की वैल्यू मैंने पुट की 5, यहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज है मैग्नीट्यूड 1 आ गया, माइनस का साइन आ गया VT, ये साइड 0 हो गई, ये साइड 5, तो मैंने बेसिकली VDS की साइड को ग्रेटर कर दिया और बाकी सारी इक्वेशन में भी यही ग्रेटर का साइन फॉलो करा। NMOS के अंदर VDS वाली साइड का ग्रेटर होना NMOS के सैचुरेशन रीजन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ देख लें, जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज पहुंच रहा है तो Q1 ट्रांजिस्टर यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, Q1 इज इन सैचुरेशन, ये सैचुरेशन में। लेट अस चेक फॉर PMOS। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड जितना वोल्टेज गेट पे हम दे रहे हैं तो क्या ये PMOS जो है वो ऑन भी होगा या नहीं। तो चेक करते हैं। PMOS के लिए VSG यूज़ किया मैंने और VSG की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज के PMOS के थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए या उससे बड़ी आ जाए तो हमारा PMOS ऑन हो जाएगा। इसमें हमें नेगेटिव टर्म्स में बात करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स वोल्टेज माइनस द गेट वोल्टेज ऑफ PMOS आपने करना है। PMOS का सोर्स वोल्टेज VDD पे है माइनस गेट पे जो आप वोल्टेज दे रहे हैं थ्रेशोल्ड का मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। आप जो थ्रेशोल्ड का मैग्नीट्यूड दे रहे हैं इसका मतलब है ये 1 वोल्ट का मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 वोल्ट ही है। तो पता क्या चल रहा है, VDD माइनस ये चीज़ कितनी होगी, 1 होगी ना। तो VDD माइनस 1 तकरीबन 4 वोल्ट के करीब VSG है। तो पता चल रहा है कि VSG पूरा 5 वोल्ट नहीं है पर थोड़ा सा 5 वोल्ट से कम है, 4 वोल्ट है। ठीक है, VSG स्टिल अभी भी तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो बड़ा ही है ना। ठीक है, QP इसका मतलब है ऑलमोस्ट ऑन ही है। तो अभी हमें QP का बेसिकली मोड फाइंड करना है। लेट अस सी दैट। PMOS के लिए फाइंड किया VDS VGS माइनस VTP। ड्रेन वोल्टेज पे PMOS के इस वक्त कितना वोल्टेज है, VDD वोल्टेज है, यस इट इज हियर। इसके बाद सोर्स पे कितना वोल्टेज है, माइनस VDD, ये साइड 0 आ गई। VGS पुट करें, गेट पे आपने मैग्नीट्यूड ऑफ VDD दिया हुआ है, सोर्स पे माइनस VDD माइनस ऑफ VTP। Put in all the values in the right side so that you can find the exact value. VT 1 आ गया, माइनस VDD माइनस 5 आ गया, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो ये 2 माइनस 5 माइनस 3 आंसर आ रहा होगा। तो 0 ऑफ कोर्स माइनस 3 से बड़ा है तो मैंने सबके ऊपर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, एंड में लगाया ग्रेटर देन का साइन। VDS जब कभी भी PMOS का बड़ा होता है, QP जो है वो ट्रायोड में होता है। तो मैंने यहाँ यही लिखा हुआ है कि जब VT को इनपुट ने क्रॉस किया होगा तो आपका जो QP ट्रांजिस्टर है वो एक्चुअली में ट्रायोड में होगा। तो अभी तक हमने बेसिकली इतना पार्ट स्टडी किया है। वी विल बी स्टडिंग द रेस्ट ऑफ द ग्राफ स्टेप बाय स्टेप। Okay, before actually we start looking into more higher input voltages, one thing we should try to observe from this graph. देखिए, आप इनपुट पर सिर्फ 0 वोल्ट नहीं दे रहे, बल्कि आप इनपुट पे 0 से VDD तक के वोल्टेज दे रहे हैं। लेकिन नोट ये करें कि ना सिर्फ 0 वोल्ट बल्कि 0 वोल्ट के करीब कुछ वोल्टेजेस ऐसे हैं कि जिसके ऊपर मुझे आउटपुट लॉजिक VDD मिल रहा है। देखिए, 0 वोल्ट तो ये है, इसका मतलब है अगर सिर्फ 0 वोल्ट काउंट हो रहा होता या लॉजिक 0 काउंट हो रहा होता तो सिर्फ 0 वोल्ट के ऊपर VDD आउटपुट आ रहा होता, बाकी किसी पे नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ तो VDD मैग्नीट्यूड वाला वोल्टेज और VIL की वैल्यू इस वक्त चले हमें पता नहीं है, लेकिन VIL तक जो वोल्टेजेस हैं वो इतने कम हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है उसको लॉजिक 0 ट्रीट कर रहा है, जब तो वो हमें आउटपुट के ऊपर लॉजिक 1 दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह देखिए, VDD वोल्टेज मैं इनपुट पे दे रही हूँ तो आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है यहाँ पे,
लेकिन VDD माइनस VT एक ऐसा वोल्टेज है जो कि है तो लॉजिक 1 ही, सॉरी जो कि VDD नहीं है, VDD से थोड़ा कम है, दायरा उसमें से VT सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इस वोल्टेज पे भी तो मुझे आउटपुट 0 मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह VIH भी VDD नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा वोल्टेज है जिस पर रफली आउटपुट पे मुझे 0 के करीब वोल्टेजेस तो मिल रहे हैं। तो पता ये चल रहा है कि किसी भी इन्वर्टर सर्किट के अंदर एक वोल्टेज लॉजिक 0 नहीं कहला रहा होता, बल्कि रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं जो कि लॉजिक 0 ट्रीट हो रही होती है। जैसे कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि 0 से लेके VIL तक तमाम वोल्टेजेस 0 ट्रीट हो रहे थे, जब तो आउटपुट पे VDD आ रहा था। और यहाँ VDD नहीं, VDD से थोड़ा कम, यानी VDD माइनस VTP माइनस VT और उससे भी कम माइनस VH, यानी कि VIH से लेके VDD तक ये तमाम वोल्टेजेस एक्चुअली लॉजिक 1 कंसीडर हो रहे थे, जब तो आउटपुट पे रफली मुझे 0 0 0 मिल रहा है। तो there are range of values that represent logic 0 in the circuit and there are range of values that represent logic 1 in a circuit। इसका फायदा क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो वो रेंज ऑफ वैल्यूज, सबसे पहली बात ये कि वो रेंज ऑफ वैल्यूज जो सारी की सारी लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी वैल्यूज जो है वो लॉजिक 0 को जो रिप्रेजेंट कर रही है, इनको नॉइज मार्जिन लो कहा जाता है। वो सारी वैल्यूज, रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज जो कि लॉजिक 1 ट्रीट हो रही हैं, उनको नॉइज मार्जिन हाई कहा जाता है। अब ये नॉइज मार्जिन हाई, लो और नॉइज मार्जिन हाई का टर्म कहाँ से आ गया? तो देखिए, अगर हमारा इनपुट सिग्नल, मैं सपोज करें 0 दे रही हूँ, ठीक है, कुछ सर्किट में हमारे ग्लिच आ गया, कोई वोल्टेज हल्का सा इंक्रीज हो गया, मेरा 0 वोल्ट बढ़ के 0.3 वोल्ट में तब्दील हो गया, तो क्या ऐसे में मेरे इन्वर्टर को अब उसको लॉजिक 0 ट्रीट कर देना, छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरे इन्वर्टर को इतना रोबस्ट नेचर का होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वक्त वोल्टेज गलती से 0 के बजाय 0.2 हो गया, तो भाई वो उसको भी 0 ट्रीट करता रहे और मुझे आउटपुट पे लॉजिक 1 देता रहे। सिमिलरली, अगर मैं अपने सर्किट पे लॉजिक 1 इनपुट दे रही हूँ, किसी वजह से कुछ ग्लिच आ गया, कुछ वोल्टेज डाउन हुआ, हो सकता है मेरा वोल्टेज VDD ना रहे, VDD से 0.5 वोल्ट कम हो गया, तो क्या ऐसे में मेरे इन्वर्टर को अब उसको VDD नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इन्वर्टर के अंदर आने वाली नॉइज़, जो भी डिस्टर्बेंस आती है, हम उसको कहते हैं नॉइज़, ठीक है। हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब करने के लिए जो भी चीज़ आती है उसे नॉइज़ देते हैं। तो हमारे सिग्नल में नॉइज़ को हैंडल करने का मार्जिन होना चाहिए कि 0 वोल्टेज अपनी 0 वोल्टेज से हट के 0.3.4 चला गया बाय मिस्टेक, बिकॉज ऑफ द नॉइज़, तो हमारे सर्किट के अंदर ये एबिलिटी थी कि उसने उस 0 वोल्ट को 0 ही रीड किया, या VDD से थोड़ा बहुत कम भी हो गया, तो हमारे सर्किट के अंदर एबिलिटी थी, उसने उसको VDD ही ट्रीट किया, उसको कोई और लॉजिक नहीं, अननोन लॉजिक नहीं ट्रीट कर दिया। तो हमारे सर्किट के अंदर जब ये एबिलिटी है कि वो कुछ सारी वैल्यूज़ को, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को लॉजिक 0 ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर नॉइज़ मार्जिन लो मौजूद है, यानी कि लॉजिक 0 को ट्रीट करने के लिए एक वैल्यू नहीं, बहुत सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। सिमिलरली, अगर हमारे सर्किट के पास लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना सिर्फ VDD बल्कि VDD माइनस VT, VIH, ये सारे लॉजिक 1 में ट्रीट हो रहे हैं क्योंकि रफली 0 आउटपुट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे सर्किट के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो हायर वोल्टेज के भी बहुत सारे वोल्टेजेस उसके पास ऐसे हैं जिनको वो लॉजिक 1 ट्रीट कर रहा है। तो हमारे पास इसका मतलब है नॉइज़ मार्जिन हाई भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि वो बहुत सारे हाई वैल्यूज ऐसे रखता है जो कि लॉजिक 1 ट्रीट किए जा सकते हैं जब भी वो उन पर 0 वोल्टेज दे रहा है। तो हमारे सर्किट में लोअर वोल्टेजेस को नॉइज से बचाने के लिए भी मार्जिन मौजूद है, और हमारे सर्किट में हाई वोल्टेज लेवल्स को भी नॉइज से बचाने के लिए मार्जिन जो है वो मौजूद है। अब अगर आप यहाँ नोट करें तो नॉइज मार्जिन लो की इक्वेशन क्या है? ये वोल्टेजेस बेसिकली लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वोल्टेज बेसिकली लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं डिफरेंस ले लूँ, VIL माइनस दिस वोल्टेज, VIL माइनस, क्या मैं कह सकती हूँ कि VIL माइनस 0 जो है वो मेरे पास
नॉइज मार्जिन लो होगा, तो VIL माइनस 0 मेरे पास नॉइज मार्जिन लो है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था जहाँ जहाँ 0 वोल्ट लिखा होगा मैं उसकी जगह VOL लिख सकती हूँ, क्योंकि इस सर्किट में जहाँ जहाँ 0 होगा मैं उसकी जगह VOL लिख सकती हूँ। तो मैंने यही किया कि 0 लिखने के बजाय मैंने VOL लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं नॉइज मार्जिन हाई की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी, VDD माइनस VIH, यही होगी, VDD माइनस VIH होगी। और अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि इस पूरे सर्किट की इन्वर्टर की एनालिसिस में जहाँ कहीं भी VDD का वर्ड लिखा होगा मैं उसकी जगह VOH लिख सकती हूँ। यही मैंने यहाँ किया है कि मैंने यहाँ VDD नहीं लिखा, मैंने VOH लिखा है। VOH एक्चुअली मीन्स VDD फॉर CMOS लॉजिक इन्वर्टर। तो अब मैंने ये फॉर्मूला बनाया कि नॉइज मार्जिन लो का फॉर्मूला है VIL माइनस 0 की जगह VOL लिखा है, और नॉइज मार्जिन हाई का फॉर्मूला क्या है, VDD माइनस VIH, जिसमें कि मैंने VDD की जगह VOH लिखा हुआ है। क्या अब मैं VIL, VOL, VOH और VIH की कोई डेफिनेशन दे सकती हूँ? देखिए ये रेंज ऑफ वैल्यूज हैं। VIL दरअसल वो सबसे ज़्यादा तरीन वोल्टेज है जिसको लॉजिक 0 में कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले वोल्टेजेस लॉजिक 0 तस्वुर नहीं होंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अब आउटपुट वोल्टेज ने यहाँ से गिरना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है VIL वो हाईएस्ट वोल्टेज है जो लॉजिक 0 ट्रीट हो सकता है, और 0 वोल्ट वो लोएस्ट वोल्टेज है जो लॉजिक 0 ट्रीट हो सकता है। तो मैंने VIL में यही लिखा है कि इनपुट की वो हाईएस्ट वैल्यू जिसको मैं लॉजिक 0 समझ सकती हूँ। और VOL क्या है, आउटपुट की। VOL दरअसल 0 है, ठीक है। तो 0 को लिखने के लिए मैंने क्या करा है कि आउटपुट की वो लोएस्ट वैल्यू जिसको हम लॉजिक 0 ट्रीट कर सकते हैं। सिमिलरली VOH एक्चुअली में VDD वोल्टेज की बात हो रही है, तो कह रहे वो हाईएस्ट वोल्टेज इनपुट का जिसको आप लॉजिक 1 ट्रीट कर सकते हैं, हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ। अच्छा, मैंने VDD के लिए VOH का जो सिंबल लिखा है, तो चाहे मैं इसके हिसाब से बात कर लूँ या इसके हिसाब से बात कर लूँ, इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो VOH VDD की जब जगह मैंने लिखा है और O के टर्म्स में, आउटपुट के टर्म्स में बात की, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाईएस्ट वैल्यू आउटपुट की जिसको कि मैं ट्रीट कर सकती हूँ एज लॉजिक 1, वो चीज़ है VOH। और VOH का क्या मतलब है, VDD। चाहे मैं इस VDD को लिख लूँ या इस VDD को लिख लूँ, दे आर द सेम थिंग। लेकिन चूंकि बुक में गिवन है कि VOH जहाँ कहीं भी लिखे, VDD जहाँ कहीं भी लिखे उसकी जगह VOH लिखे, तो मैंने VOH के टर्म में ही डेफिनेशन दी कि आउटपुट का वो हाईएस्ट वैल्यू जो कि लॉजिक 1 ट्रीट हो सकती है, ये हम VOH के लिए डेफिनेशन देते हैं। सिमिलरली VIH, अब देखिए VIH जो है वो सबसे आखिरी तरीन वैल्यू है कि अगर इनपुट वोल्टेज इससे कम होगा तो फिर वो लॉजिक 1 ट्रीट नहीं हो रहा होगा। यानी कि VDD से लेके VIH तक जितने वोल्टेजेस थे वो लॉजिक 1 ट्रीट हो रहे थे। तो मैं कह सकती हूँ कि VIH वो मिनिमम तरीन वोल्टेज है जो कि लॉजिक 1 कहला सकता है। तो मैंने यही लिखा है कि ये वो लोएस्ट वैल्यू है इनपुट की जो कि लॉजिक 1 कहला सकती है। अब एक बात ये कि वो वोल्टेज जो जो VIL और VIH के दरमियान में लाए करते हैं, ये ट्रांजिशन वोल्टेजेस हैं, ना ये लॉजिक 0 में फिट हो रहे हैं ना ये लॉजिक 1 में फिट हो रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आउटपुट ऑफ इन्वर्टर इज एक्चुअली डिक्रीजिंग फ्रॉम लॉजिक 1 to 0। हमें पता चल गया ये सारे लॉजिक 0 को इंडिकेट कर रहे हैं, ये सारे लॉजिक 1 को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इन दोनों के बीच में जो वोल्टेजेस हैं वो बेसिकली किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करे, ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें अपना इन्वर्टर आउटपुट जो है वो चेंज कर रहा है। VIL के ऊपर भी ट्रांजिस्टर का स्टेट यही रहेगा, QN सैचुरेशन में रहेगा, QP ट्रायोड में होगा। तो मैंने VIL का स्टेट फाइंड नहीं किया है, ठीक है। अब मैं अगला स्टेट फाइंड करने लगी हूँ, या जो अगला रीजन स्टडी करूँगी वो इनपुट की वैल्यू VDD/2 पे मैं स्टडी करने लगी हूँ। यानी कि अब जो हम अपनी प्रीवियस एनालिसिस जो करते हुए आ रहे थे मोड फाइंड करने की, अब मैं इनपुट पे क्या दूंगी, मैं इनपुट पे दूंगी VTH = VDD/2, यानी हाफ ऑफ VDD वोल्टेज दूंगी। So now we are going to study the state of the CMOS inverter at input VTH at input VDD/2।
मैं VDD बाय 2 के ऊपर जो है वो अपने सर्किट की इवैल्यूएशन करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, VIL को स्टडी क्यों नहीं कराया? VIL की वैल्यू अभी हम एंड में फाइंड करते हैं। VIL के ऊपर भी स्टेट वही रहेगी जो यहाँ पर है स्टेट ना, इसी वजह से मैंने VIL को फाइंड नहीं कराया। मैं डायरेक्ट आ गई हूँ रीजन 3 के ऊपर। अभी VIL की वैल्यू क्या है, VIH की वैल्यू क्या है, ये अभी बिल्कुल स्लाइड के एंड में आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो स्टेट है वो क्या है कि इनपुट पे हम VDD बाय 2 दे रहे हैं, आउटपुट पे भी VDD बाय 2 है। तो इस लिहाज से ये जो इनपुट VDD बाय 2 है ये एक स्पेशल इनपुट इस वजह से है कि इस वक्त मैं जितना इनपुट VDD बाय 2 दे रही हूँ CMOS के इन्वर्टर के आउटपुट पे उतना ही वोल्टेज आ रहा होगा VDD बाय 2। सो दिस इज वन वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज वेयर द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर एग्जैक्टली सेम। इस इनपुट वोल्टेज पे वही आउटपुट है जो इनपुट वोल्टेज जितना है VDD बाय 2। तो यानी कि VI या जो गेट वोल्टेज है, गेट वोल्टेज और VI वो भी VDD बाय 2 है। V0 और ड्रेन का वोल्टेज चाहे NMOS हो या PMOS हो वो भी VDD बाय 2 है। लेट अस सी इफ NMOS इज ऑन और ऑफ। VGS फाइंड करते हैं, किसके बराबर होगा? गेट वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज यानी VI माइनस 0 0 एज इट इज रहा। गेट पे आप दे रहे हैं VDD बाय 2। VDD बाय 2 तकरीबन 2.5 वोल्ट बनता है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज NMOS का 1 वोल्ट है, उससे अच्छा खासा ज़्यादा है, इसका मतलब है NMOS इज ऑन। मोड फाइंड करते हैं VDS VGS माइनस VT, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। V0 एक्चुअली ड्रेन के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्रेन वोल्टेज की जगह मैंने लिख दिया VDD बाय 2, NMOS का सोर्स वोल्टेज 0। गेट वोल्टेज VDD बाय 2 है क्योंकि VI की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स वोल्टेज 0 है, T थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। VDD बाय 2 कितना हो गया? VDD बाय 2 तकरीबन 2.5 हो गया, माइनस 1 तकरीबन 1.5 वोल्ट हो गया। तो मैंने इसी वजह से ये साइड तकरीबन 2.5 वोल्ट की है, इस साइड को ग्रेटर कर दिया है मैंने, इस साइड को मैंने ग्रेटर पे इंडिकेट किया, यानी कि ये तकरीबन आपके पास ग्रेटर आ रहा है। तो जो QN सैचुरेशन में इसका मतलब है आ रहा है, क्योंकि VDS जब भी ज़्यादा होता है तो NMOS जो है वो सैचुरेशन में होता है, मुझे पता चल गया। तो मैंने इसीलिए VDD बाय 2 के ऊपर बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि QN ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन में है। PMOS के लिए VSG फाइंड करते हैं, क्योंकि देखते हैं वेदर PMOS इज ऑन और ऑफ। VSG सोर्स वोल्टेज PMOS का हमेशा VDD पर होता है। गेट वोल्टेज बेसिकली VI को इंडिकेट कर रहा है जो कि VDD बाय 2 पे है। तो मेरे पास वोल्टेज क्या आ रहा है? 5 माइनस 2.5, माइनस 2.5 आंसर आ रहा है मेरे पास। आई एम सॉरी, 5 माइनस 2.5 मेरे पास प्लस 2.5 आंसर आ रहा है। 2.5 वोल्ट ज़्यादा है PMOS के थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से, यानी 1 वोल्ट से ज़्यादा है PMOS के। मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ जब मैं VSG की बात करती हूँ, तो ये इससे ज़्यादा है, इसी वजह से PMOS भी ऑन है। PMOS का मोड VDS VGS माइनस VTP। ड्रेन वोल्टेज ऑफ PMOS VDD बाय 2, क्योंकि दोनों का ड्रेन वोल्टेज NMOS PMOS का सेम है जो कि इस वक्त VDD बाय 2 पे है। सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS माइनस VDD पे है, ठीक है। अच्छा, गेट वोल्टेज ऑफ PMOS VDD बाय 2 पे है, सोर्स वोल्टेज अगेन माइनस VDD पे है और ये माइनस VTP। अब आपने क्या किया? VDD बाय 2 माइनस VDD, ये माइनस VDD बाय 2 बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गया? इसको ज़्यादा आसानी क्या है कि आप इस सब में ना वैल्यू पुट कर लें, आपको बहुत क्लियर पता चल जाएगा। 2.5 माइनस 5 अच्छा एक चीज़, मैं इसको वैल्यू क्यों नहीं पुट की हुई? वैल्यू इसलिए करें कि इस VDD बाय 2 से ये VDD बाय 2 कैंसिल, इस माइनस VDD से ये VDD कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 बच गया और इस वाली साइड पे माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 बच गया। तो 0 चूंकि बेसिकली प्लस 1 के मुकाबले में कम है, जब भी आपकी VDS की साइड जो है वो कम आ गई। जब VDS PMOS में कम होता है तो PMOS जो होता है वो सैचुरेशन में होता है, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो एट दैट स्टेट जब इनपुट पे आप VDD बाय 2 दे रहे हैं, आउटपुट पे भी VDD बाय 2 आपको मिल रहा है, उस वक्त दोनों NMOS ट्रांजिस्टर और PMOS ट्रांजिस्टर दोनों के दोनों सैचुरेशन में नज़र आ रहे हैं। रीजन 4 पे आ जाते हैं जब VIH जो है वो VDD है। अच्छा देखें, इसकी एनालिसिस के अंदर जो है ना VIH की डेरिवेशन कराई हुई है, वो मैं आगे थोड़ा सा बता उसके बारे में दूंगी, लेकिन वो डेरिवेशन मैंने ऐसा इंक्लूड नहीं की है इस कोर्स के अंदर। हम VIH से फिर जो है आगे जाके VIL कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी एंड में देखते हैं। अच्छा,
VIH की वैल्यू बराबर है 1/8 टाइम्स 5 VDD माइनस 2 VT। फिलहाल मैं VIH की कैलकुलेशन किए बगैर डायरेक्ट आंसर यूज करी हूँ जो हमारे इस कैलकुलेशन से आएगा कि VIH 1/8 5 VDD माइनस 2 VT के बराबर है। ये एक ऐसा वोल्टेज है कि जिसपे आउटपुट रफली जीरो आ रहा है। जब भी मैंने V0 को तकरीबन जीरो ही दिखाया, मैंने 0.5 0.6 नहीं दिखाया कि VIH के ऊपर तकरीबन आउटपुट इतना कम होगा दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज जीरो, तो मैंने V0 को जीरो ही रख दिया। NMOS देखते हैं इस वक्त ऑन होगा या नहीं। VGS ऑफ N गेट वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज। NMOS का सोर्स वोल्टेज जीरो है। गेट वोल्टेज कितना है NMOS का? गेट वोल्टेज है VIH के बराबर। VIH की वैल्यू पुट कर दी 5 VDD यानी 5 5 25 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 25 माइनस 2 23 डिवाइडेड बाई 8। कोई पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा जो कि बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 1 वोल्ट से ज़्यादा है, NMOS ऑन रहेगा। असल चीज़ क्या है, NMOS का आप मोड फाइंड करके देखें। VDS फाइंड करें, VGS माइनस VT फाइंड करें। ड्रेन पे NMOS के इस वक्त जीरो है। क्यों जीरो है कि मैं अज्यूम करी हूँ कि VIH इतना हाई वोल्टेज हो गया है कि ये आउटपुट पे तकरीबन हमें लॉजिक जीरो दिखा रहा है। ड्रेन वोल्टेज पे जीरो, NMOS के सोर्स पे जीरो। गेट पे वही VIH वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज जीरो है, मैंने लिखा नहीं है, माइनस VT 1 वोल्ट। जाहिर है जब ये साइड आपकी लाजमी ज़ीरो हो गई तो इस साइड का तो कुछ ना कुछ बड़ा आंसर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब VDS की साइड कम है। जब भी NMOS में VDS का साइड कम होता है इसका मतलब है NMOS जो होता है वो ट्रायोड में होता है। तो ये अब मेरे पास मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं VIH के आगे चली गई हूँ कि यहाँ पे NMOS ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली ट्रायोड में है। PMOS को देखते हैं ऑन भी होगा या नहीं, और अगर ऑन होगा तो किस मोड में ऑन होगा। VS माइनस VG, सोर्स वोल्टेज PMOS का VDD पे है, गेट वोल्टेज PMOS का इस वैल्यू पे है। सॉल्व कर लिया, 1 माइनस 1/8 इंटू 5 VDD सॉल्व करके आ जाएगा 3/8 VDD। ब्रैकेट भी मैं ओपन कर चुकी हूँ, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2 VT तो 1/4 VT। ये वैल्यू भी सॉल्व कर लीजिएगा, VDD की वैल्यू पुट करके, VT की वैल्यू पुट करके। रफली ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से PMOS के दायरे ज़्यादा ही आ रही होगी जो कि 1 वोल्ट का मैग्नीट्यूड है, तो QP तकरीबन हमें ऑन ही नज़र आ रहा है। PMOS का मोड VDS VGS माइनस VTP। ड्रेन वोल्टेज PMOS का जीरो पे है क्योंकि आउटपुट आपका जो है ड्रेन वोल्टेज PMOS का VDD बाई 2 पे है क्योंकि आउटपुट I'm sorry इस वक्त हम ड्रेन वोल्टेज जीरो को कंसिडर करें, VD ड्रेन वोल्टेज इस वक्त जीरो पे है, ठीक है। सोर्स वोल्टेज PMOS का माइनस VDD पे है। गेट पे आपने यही VIH की वैल्यू लिखी हुई है, माइनस द सोर्स वोल्टेज माइनस VDD और माइनस VTP। अब एक चीज़ देखें कि इस वाले चीज़ का आंसर ये अच्छा खासा कुछ पॉजिटिव में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल माइनस VDD इज़ द लोएस्ट वोल्टेज जो इस वक्त अपीयर हो रहा है इस वाली साइड के ऊपर। इससे ज़्यादा नेगेटिव तरीन वोल्टेज इस सर्किट में आएगा ही नहीं, तो हमें पता चल जाएगा। ये वैल्यू सारी पुट करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि राइट हैंड साइड ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर है। माइनस 5 वोल्ट आ रहा है, तो जब भी VDS कम होता है PMOS में, ये PMOS के सैचुरेशन की कंडीशन होती है, QP इन सैचुरेशन। तो पता चल गया कि VIH पहुँचने के बाद QP ट्रांजिस्टर या PMOS ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है और NMOS जो है हमारे पास वो ट्रायोड में है। VDD माइनस VT पे भी देख लेते हैं और VDD पर भी देख लेते हैं इसे। Okay, last two regions are left. Now we are applying VI VDD minus VT। ये हम अप्लाई कर रहे हैं और V0 जो है इस वक्त ज़ीरो आ रहा है। इस इनपुट को मैं दे रही हूँ VDD माइनस VT। प्लीज़ नोट कि जो VT है इसका मैग्नीट्यूड यानी 1 वोल्ट की बात हो रही है, या ना -1 ना +1, बस ये 1 वोल्ट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और गेट पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा वोल्टेज तकरीबन VDD के बराबर ही है कि आउटपुट ऑलमोस्ट ज़ीरो आ रहा है, जब भी मैंने V0 को ज़ीरो दिखाया हुआ। NMOS देखते हैं, VGS गेट वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज। गेट पे VDD माइनस VT तकरीबन 4 वोल्ट है, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, NMOS ऑन है। NMOS का मोड VDS VGS माइनस VT। अच्छा, VD ड्रेन का वोल्टेज ज़ीरो, ठीक है। क्यों ज़ीरो? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो है, वही ड्रेन वोल्टेज है। सोर्स वोल्टेज ज़ीरो। VGS क्या है? VDD माइनस VT है, ठीक है। गेट के ऊपर आ गया, सोर्स वोल्टेज ज़ीरो था, मैंने लिखा नहीं है, माइनस VTN ये आपका, ये तो फॉर्मूले का है। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया?
5 वोल्ट -1 तकरीबन 5 में से 2 वोल्ट निकाल दिया 3 वोल्ट। तो ऑफ कोर्स VDS की ये वाली साइड आपकी कम जा रही है, Q1 ट्रायोड में है। प्लीज़ नोट कि मैं जितना भी ये देख रही हूँ कि कौन सी साइड ग्रेटर है या स्मॉलर है, मैंने वैल्यूज़ इसीलिए अपने पास अज्यूम की हुई हैं ताकि मैं इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके देख सकूँ कि कौन सी साइड स्मॉलर ग्रेटर है। अदरवाइज सिर्फ ये टर्म्स को देखना, VDD माइनस द मैग्नीट्यूड ऑफ VT माइनस VTN, ये देख के ये डिसाइड करना कि कौन सी साइड ग्रेटर स्मॉलर है पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई शुरू में ही वैल्यूज अज्यूम कर ली गई हैं। ठीक है, अच्छा PMOS को भी देख लेते हैं, ऑन है या ऑफ। VSG सोर्स माइनस द गेट वोल्टेज, सोर्स पे इसके हमेशा VDD रहता है, गेट पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं VDD माइनस VT का मैग्नीट्यूड। VDD से VDD कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा VT मैग्नीट्यूड, यानी गेट पे रफली PMOS के क्या है 1 वोल्ट आ गया। PMOS 1 वोल्ट इसके थ्रेशोल्ड के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब है PMOS जो है वो बिल्कुल अब शायद ऑफ होने के करीब पहुंच रहा है। ठीक है, तो PMOS लेकिन इस वक्त ऑन है, इस वक्त PMOS ऑन है क्योंकि जो इसके गेट पे वोल्टेज है 1 वोल्ट के बराबर, ये इसके थ्रेशोल्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है कि PMOS इज स्टिल ऑन। इसका मोड चेक कर लेते हैं, VDS VGS माइनस VTP, ड्रेन पे है इसके 0, सोर्स पे इसके होता ही माइनस VDD है, गेट पे हमने ये वोल्टेज दिया हुआ है माइनस VTP माइनस, अच्छा ये माइनस इसका सोर्स वोल्टेज है माइनस VTP एज इट इज। इस VDD से ये VDD कैंसिल हो गया, ये बेसिकली देखें ये क्या है, ये -1 है और ये माइनस, और ये खुद -1 है तो ये +1 हो गया, तो मैंने इस माइनस VT को इससे कैंसिल कर दिया। जब आप इन सब की वैल्यू पुट करेंगे ना तो आप देखिएगा वैसे ही ये साइड कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगी। मैंने तो इस वक्त डायरेक्ट करके दिखा दिया कि बेसिकली ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पुट करके देख लीजिएगा राइट हैंड साइड पूरी 0 आ रही होगी माइनस VDD। अब PMOS में VDS की साइड कम आ रही है और ये वाला जो साइड है वो ज़्यादा आ रहा है। PMOS में जब भी ये वाली साइड VDS की साइड कम आती है तो ये PMOS का सैचुरेशन रीजन होता है, यानी PMOS सैचुरेशन में। तो वही चीज़ बन रहा है कि NMOS अभी भी ट्रायोड में है, PMOS अभी भी सैचुरेशन में है। NMOS ट्रायोड, PMOS सैचुरेशन, ये चीज़ यहीं पे कर रही है वर्क। अच्छा, VDD माइनस VT के बाद भी यही चीज़ वैलिड है। आखिरी में अब आप ये देख रहे हैं कि इनपुट ऑफ VDD पहुंच गया, आउटपुट 0, इनपुट VDD पहुंच गया, आउटपुट 0 हो गया है। ठीक है, अब आपने NMOS को देखा, VGS गेट पे VDD दे रहे हैं, सोर्स पे 0, NMOS ऑन होगा जाहिर है क्योंकि VDD 5 वोल्ट है, इसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, NMOS ऑन है। अच्छा, NMOS किस मोड में ऑन है, VDS VGS माइनस VT। NMOS के ड्रेन पे 0 वोल्ट है, जाहिर है जब इनपुट पे VDD दे रहे हैं आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ड्रेन पे 0, सोर्स पे 0, ये साइड कम हो गई। VGS माइनस VT, गेट पे VDD है, सोर्स पे 0 -1, यानी 5 -1 4 वोल्ट, तो 0 ऑफ कोर्स साइड पे कम है, यहाँ 4 वोल्ट आ रहा है इस वाली साइड पे। तो VDS NMOS का जब भी कम होता है NMOS ट्रायोड में होता है, ये यहाँ पर जो है वो आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। PMOS VSG माइनस VTP, सोर्स पे PMOS के VDD होता है, गेट पे अभी हम VDD दे रहे हैं, जब VDD माइनस VDD 0 हुआ, अब ये 0 वोल्ट PMOS के थ्रेशोल्ड के मैग्नीट्यूड से कम है, जब भी PMOS इस पे ऑफ हो गया। तो यही चीज़ ये VDD वाली लाइन के ऊपर इसका स्टेटस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि VDD आने के ऊपर जो है वो PMOS ऑफ हो जाएगा और NMOS जो है वो ट्रायोड में चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली एनालिसिस ख़त्म हो जाती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। क्विकली हम नॉइज़ मार्जिन से रिलेटेड VIS से रिलेटेड एक दो चीज़ें देखते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। Okay, in this slide we will actually try to find we will actually try to learn the method of how to find VIH फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात तो ये देखें कि VIH पे और VIL बेसिकली ये वो वोल्टेजेस हैं जिसके ऊपर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट लगाएं, यानी कि V0 ओवर VI, DV0 ओवर DVI लगाएं, तो VIH पे भी और VIL पे भी इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन -1 है। दोबारा से बता रही हूँ, ये जो मैंने -1 लिखा है जो कि VIL से थोड़ा सा दूर नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली VIL पे था। ठीक है, बेटर के एग्जैक्ट फिगर के लिए जो है ना वो बुक को रेफर कर लें
कि -1 वाली जो चीज़ है ये तकरीबन VIL पे एग्जैक्टली बन रही है, ठीक है। इसी तरह से ये जो स्लोप गिरता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एग्जैक्टली VIH पे बन रहा है रफ। इसमें ऐसा कोई गलती नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन एकदम 100% एग्जैक्ट के लिए आप चाहें तो बुक को रेफर कर लें। अच्छा, -1 VIH और VIL पे लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट -1 है, यानी DV नॉट ओवर DVI, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट -1 है। पहली बात याद रखने की ये है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर VIH पॉइंट के ऊपर NMOS ट्रायोड में है, PMOS सैचुरेशन में है, तो इसीलिए मैंने NMOS के ट्रायोड की इक्वेशन लिखी हुई है और PMOS के सैचुरेशन रीजन की इक्वेशन लिखी हुई है। और इन दोनों को इक्वेट क्यों किया हुआ है कि भाई NMOS PMOS इन्वर्टर के अंदर एक साथ लगे हुए हैं, ऊपर नीचे करके लगे हुए रहते हैं, तो इट मीन्स दैट जो करंट PMOS का होगा वही NMOS का तो है, दोनों एक दूसरे के साथ ही तो लगे। और NMOS का करंट ट्रायोड की वजह से और PMOS का करंट सैचुरेशन की वजह से दोनों बराबर है, क्योंकि सर्किट में दोनों ऊपर नीचे करके लगे हुए। अब मैंने ये तो जनरल इक्वेशन NMOS के ट्रायोड की लिखी थी, ये जनरल इक्वेशन PMOS के ट्रायोड की लिखी थी, इनको सर्किट पैरामीटर्स की फॉर्म में पुट कर दिया कि VGS की जगह VI लिख दिया, VT की जगह VTN लिख दिया, VDS की जगह V0 लिख दिया, फिर VDS की जगह ये लिख दिया, PMOS के VSG की जगह VDD माइनस VG की जगह VI लिख दिया, VTP एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये तो मैंने इक्वेशन लिख दी। इस पूरी इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू VI, और जहाँ जहाँ DV0 अपॉन DVI आए उसको -1 पुट करना है। तो ये अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, और फिर एंड में जहाँ जहाँ VN आ रहा होगा उसकी जगह VIH पुट करना होगा, ठीक है। तो ये करते करते एंड में आपके पास इक्वेशन ये निकलेगी VIH इक्वल टू 1/8 VDD माइनस VT। तो मैंने ये डेरिवेशन कोर्स में इंक्लूड नहीं की है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एक इक्वेशन बन रही थी। अदरवाइज अगर कोई सॉल्व करना चाह रहा है ठीक है, बट दिस इज नॉट एज सच इंक्लूडेड। सिर्फ इतना ध्यान में आपने रखना है कि NMOS ट्रायोड PMOS सैचुरेशन में है, इसको DV0 विद रिस्पेक्ट टू VI इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। जो जो कांस्टेंट टर्म्स है लाइक द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VDD, VTP, ये सारे ज़ाहिर है कांस्टेंट टर्म्स हैं। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो आप ये सारी टर्म जीरो होती जाएंगी, ठीक है। बाकी VI का V0 का कुछ डिफरेंशिएट आ जाएगा, ये DVI अपॉन DVI 1 हो जाएगा, DV0 ओवर DVI की जगह -1 पुट कर देंगे, एंड सो ऑन। बहरहाल मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, एंड में आपको VIH की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करना है तो ठीक है, अदरवाइज इतना मेथड देख लिया, दैट्स इनफ। अगले स्टेप में हम VIH की मदद से VIL फाइंड करेंगे और फिर अपने एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। ओके, ये बात नोट कर लें कि VDD/2 VIH से जितना दूर है VIL से भी इतना दूर है। तो अगर मैं VIH माइनस VDD/2 करूँ, VIH माइनस VDD/2 करूँ या VDD/2 माइनस VIL करूँ तो ये दोनों गैप्स बराबर होंगे, ठीक है। VDD/2 बेसिकली सेंटर पॉइंट है, VIH उससे जितना दूर है इस पॉइंट से VIL भी इतना दूर है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ वो क्या होगा, VIH माइनस VDD/2, और इसका डिफरेंस निकालूँ वो होगा VDD/2 माइनस VIL, तो ये बराबर होंगे। अब मैं अज्यूम करी हूँ कि VIH की वैल्यू बेसिकली मैंने कैलकुलेट कर ली है, जो कि बेसिकली ये है माइनस VDD/2, ये VDD/2 एज इट इज है। मैं इससे VIL फाइंड कर लूँ, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सारी चीज़ें गिवन है, तो VIL की आपके पास जो है वो ये इक्वेशन आ जाएगी। प्रीवियसली नॉइज मार्जिन की इक्वेशन में मैंने VOH माइनस VIH लिखा था, VOH की जगह VDD, VIH की जगह वो वैल्यू रख दें जो आपने बेसिकली अभी यूज़ की है, जो हम अज्यूम कर रहे हैं। और इसके बाद फिर नॉइज़ मार्जिन हाई की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर नॉइज़ मार्जिन लो में VIL की जो आपने रिसेंटली वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर देंगे। VOL का मतलब मैंने पहले बताया था 0 है, तो आपके पास नॉइज़ मार्जिन लो आ जाएगी। तो CMOS इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है जिसके अंदर नॉइज़ मार्जिन हाई और नॉइज़ मार्जिन लो इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर लॉजिक फैमिली का जो इन्वर्टर है उसमें दोनों की वैल्यूज़ बराबर आ रही हो। तो CMOS के अंदर ये दोनों चीज़ें बराबर आती हैं। दोनों के बराबर आने का मतलब ये है कि एक सिमेट्रिक इन्वर्टर है
जितनी कैपेसिटी अवेलेबल है हाई वोल्टेज के वोल्टेजेस को अकोमोडेट करने के लिए, उतनी ही कैपेसिटी अवेलेबल है लो वोल्टेजेस को अकोमोडेट करने के लिए। ये दोनों आपस में जो है वो बराबर है। ठीक है, नाउ विद दिस वी आर एंडिंग द एनालिसिस ऑफ द CMOS लॉजिक इन्वर्टर। आई विल बी गिविंग क्वेश्चंस related to the CMOS inverter and the MOSFET hopefully in 1 or 2 days। तो आपने सारे अपने पास सॉल्व करके रखने हैं। CMOS इन्वर्टर में से ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं के अंदर से सवालात आएंगे जो एनालिसिस हमने किए, क्योंकि ज़ाहिर से न्यूमेरिकल नहीं बन सकता CMOS इन्वर्टर से। ठीक है, बाकी प्रीवियस से न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनकी प्रिपरेशन रखें। आई विल बी गिविंग द क्वेश्चंस एंड अपने पास सॉल्व करके रखें। आई विल कलेक्ट इट फ्रॉम यू।